Yes, my dear. Thank you very much. Now I am going with the new chapter, Dust of Snow. Here, as we see, dust. This is not a powdery thing, sir. Something else. You can say dust that is fall. Something fall. What does fall? Now, the powder of the snow or the snow falls. The snow falls. Here, this chapter has been written by Robert Lee Frost, an American poet. He was born on March 26, 1874 and died on January 29, 1963. He has mostly written about life and landscape. Something rural happening has been specified by him, and he has taken the example of very rural and countryside. जो भी इन्होंने एग्जाम्पल का यूज किया है वो देहाती और ग्रामीण चीजों से लेकर के किया है. जैसे इन दिस पोएम he has used the name of a bird crow, and also he has used a tree, hemlock. Generally, we have two different ideas for hemlock tree. Hemlock is a poisonous tree, and crow, that is also not a good sign. Therefore, combinedly we call it the ominous image, Ashuk. Now, if you think, when you start going somewhere else from your house and some bad omens are said to you. For example, बिल्ली ने रास्ता काट दिया. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक आंख वाले आदमी को देख लिया, तो लोग सोचते हैं कि काम तो बिगड़ गया. तो कुछ ऐसे हैं जैसे लार्क है, वल्चर है, ईगल है, रेवन है, क्रो है, तो ये सब बैड ओमेन में आते हैं. रेवन बैड ओमेन में आते हैं कि कौवे ने छू दिया, इसको सभी लोग बुरा मानते हैं. उसी तरह से हेमलॉक ट्री है, ये पॉइजनस ट्री है, इसका कोई लाइफ नहीं है. And now here the poet has taken these two examples. Actually, the means of the poet, he wants to change the ideology of the people, that they should not mistake to think about the ominous things and ideas. They should come out from such ideas. They should not believe on all these things. Actually, the poet wants to say, as he himself was very much disturbed, depressed, disappointed, बहुत उदास था, बहुत दुखी था, and he thinks that the whole day of him will waste into depression and disappointment. माने इस दुख में ही सारा समय हमारा बीत जाएगा, सारा दिन बीत जाएगा. It will not be utilized properly. तो वो क्या करता है? वो ऐसी चीजों का प्रोपाउंड करता है, ऐसे चीजों को सामने लाता है कि जो लोगों के दिमाग को बदल देने की स्थिति में. हालांकि पोएम बहुत बड़ा नहीं है, only 2 stanzas are here, 8 lines of the poem is here, and this 8-line poem has very deep sense in our life. It is not very easy to us to handle it, that a man who was standing under the tree
the crow came, flutters its wing, and the snow fall from the leaf over the man. That is enough. कहने के सेंस में तो ये कि पोएट आया, उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, कुछ ऐसे ही सोच रहा था, तब तक एक कौवा आया, बैठ गया, अपने पंख को फड़फड़ाया, और फड़फड़ाने से चूंकि विंटर सीजन था, पेड़ पे बर्फ थी और बर्फ के कुछ टुकड़े झड़ करके पोएट के ऊपर गिर गया। पोएट देखा है क्या है, पोएट पूछे, बट इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग in our life that can change the idea, that can change the hypothetical pattern of the human being. जो एक कस्टमरी है, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब क्या करें, you should not remember it, you should forget it, you should not think it. Don't give importance. Why? Because the poet has taken the image or symbol of crow and hemlock, and these two things are very ominous. In spite of it, besides this, इसके अलावा the mood of the poet was quietly changed from bad to good. तो पोएट यही बताना चाहता है कि इस संसार में जितने भी ओमिनस आइटम्स हैं, जितने भी ओमिनस थिंग्स हैं, जितने भी अपशकुन के सिंबल्स हैं, वो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि यही सारी बुरी चीजें हमारे जीवन में अच्छी चीजों के रूप में बदलाव ला देती। That brings a quite good change in our life. ये चीज है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इस पोएम पर भी ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है कि क्या। As you know that the poet was standing under the hemlock tree as he has been coming from somewhere else. Poet has been coming from somewhere else and he has been just coming and standing under the hemlock tree. Under the hemlock tree, he finds himself. He has been standing here, and the mood of the poet is upset. He is disappointed. Now, from somewhere, a crow that is known as raven comes and sat on the branch of the hemlock tree. Especially, it is a winter season. Therefore, the snow are very common that are found over the trees. Snow winter season में अमेरिका में, ब्रिटेन में, रसिया में या फिर हाई एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड नहीं बोलना है जी हाँ, एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में बड़ा डिफरेंस होता है। Latitude imaginary lines होती है that has been drawn over the globe of the earth in order to find the exact location. Whereas altitude, that is the height towards the sky. Any object relatively high in respect of the nearby ground. तो माउंटेन्स की जो हाइट नापी जाती है वो एल्टीट्यूड में नापी जाती है, लैटिट्यूड में नहीं नापी जाती है, एल्टीट्यूड में नापी जाती है। As we go up, that is the inverse condition of temperature होता है, inverse condition of temperature होता है। जैसे ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फायर, एक्सोस्फियर, एग्नोस्फियर, तमाम स्फीयर्स हैं, तमाम लेयर ऑफ हैं, तो उसी में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, इनवर्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर के हाइट पर जब हम जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तो 1 या 1.5 डिग्री टेम्परेचर लो होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। एंड इनवर्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन द सेम वे, इफ वी आर गोइंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, वी आर गेटिंग हाई टेम्परेचर।
इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में जाते हैं, अगर अर्थ के गोले के अंदर, पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं तो इंटीरियर पार्ट होता है वो, इंटीरियर पार्ट में जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ हमको टेम्परेचर बढ़ता नज़र आता है, और जैसे जैसे हम आकाश ऊपर जाते हैं, सूर्य के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो हमको टेम्परेचर कम मिलता है। ठीक है, तो इनवर्स टेम्परेचर होने की वजह से ये माउंटेन पे स्नो डिपॉजिट हो जाते हैं, कंडेंसेशन ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम जाता है। आजकल वो लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर्स पर लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं ना, कहाँ से, वो घाटी में, गलवन घाटी में, गलवन नदी में, गलवन नाला में उस टाइम गिर गए होंगे, इतनी भयंकर ठंडी है कि वो, अच्छा, और ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, रेयर ऑक्सीजन। तो फिलहाल दिस इज द विंटर सीजन, इज द सीजन इन हाई लैटिट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड। हाई लैटिट्यूड मीन्स फ्रॉम इक्वेटर टू नादर पोल, equator to north pole. If we are going, then we are getting high temperature, low temperature, and thus we are getting the freezing point. By and by we are getting freezing point. And frigid zone, temperate zone, frigid zone, torrid zone, and temperate है, torrid है, frigid है, polar wind जहाँ चलती है, इग्लू वगैरह, एक्सकिमो वगैरह रहते हैं। तो अमेरिका और इंग्लैंड और साइबेरियन रीजन लगभग हाई लैटिट्यूड पे है जहाँ फ्रीजिंग ज़्यादा। तो फिलहाल क्योंकि ये हेमलॉक पर कैसे स्नो का डिपोजिशन हो जाता है, इस पर मैंने थोड़ी सी बात करूँगा। तो द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, फ्रॉम एनीवेयर the crow came and perched on the branch of hemlock tree. Actually, what is that idea based in the poet's mind? That he says his mind was disappointed, dejected, feeling sorrow, upset mood. The mood of the poet was upset, bad mood, standing under a poisonous tree, and a raven or crow comes, sits on the branch. All 3 points are ominous. ये तीनों पॉइंट बड़े अशुभ संकेत सूचक है। पोएट का मूड खराब है, पोएट पॉइजनस पेड़ के नीचे खड़ा है, और एक कौवा जो अशुभ है वो भी आकर के बैठता है। बर्फ का गिरना उसके ऊपर, एज द क्रो फ्लटर इट्स विंग, द particles of snow falls from the leaves of the tree over the poet, and poet see that and feels at least happy. Very immediately the mood of the poet was changed. Very immediately the mood of the poet was changed from bad to good, and he felt that at least where the whole day was going to be waste in sadness, now the remaining time of the day was saved from being waste. बर्बाद होने से जब उसके ऊपर बर्फ गिरती है तो वह ऊपर देखता है और कहता है कि कौवा, और ये रेवन है, एक तरह से क्रो है, और दूसरा ये हेमलॉक है, तो ये दोनों पॉइजनस है, दोनों खराब है, ओमिनस, ये मिलकर के मेरे मूड को चेंज कर दिए। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पूरा दिन कहीं बर्बाद होने से बच गया। अभी हम थोड़े सा ही, जो भी दिन हमारा बचा हुआ है उसमें हमारा मूड चेंज हो गया। तो पोएट का यही कहना है कि तमाम ओमिनस चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के मूड को चेंज कर देगी, और लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कोई वर्ल्ड में, इस संसार में कोई ओमिनस चीज़ें भी है। चलिए सुनते हैं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ लिखते हैं, तो रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? सफरिंग है, हैप्पीनेस एंड सॉरो। रियलिटी ऑफ लाइफ में सफरिंग, हैप्पीनेस एंड सॉरो।
किसी के जीवन में एक खराब दिन नहीं आता। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में खराब दिन है। रोजाना खराब समय आता है, रोजाना अच्छा समय आता है, रोजाना दुखी कर देने वाला टाइम भी आता है। तो ये क्या है? सफरिंग है। लोग झेलते भी हैं अपने जीवन में, है? खुशहाली भी होती है लोगों के जीवन में और दुख भी होता है लोगों के जीवन में। तो ये चीजें जो है, ये क्या है? तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, जीवन का सत्य है। ये सबके साथ होना है। ऐसा नहीं है कि केवल पोएट का मूड चेंज हुआ, खराब हो गया था तो वो बदल गया तो हमारा भी ऐसे होगा। सबके समय में कुछ अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जैसे अभी मैंने वो बिल्ली का उदाहरण दिया, एक लेम आदमी का लंगड़े का उदाहरण दिया, उस तरह से यहाँ कौवे के बारे में भी बात किया गया है। द वे अ क्रो swoop down on me, the dust of snow from a hemlock tree. In which manner, as where does poet find himself to stand under the hemlock tree? As the poet was coming from somewhere and his mood was upset. How you know that his mood was upset? That in the last extract he will get that his mood was actually upset and how was he changed. Now the way a crow, in the way God knows how does a crow come and sits on the branch of hemlock tree, swoop down on me the dust of snow. What does he swoop down? He shakes down the dust of snow on him. How? He don't have any strong hand to shake the branches of hemlock tree, but only because of the fluttering of the wing, the snow falls over the body of the poet. पोएट के बॉडी पर वह स्नो गिरता है। कौवा आता है, अपने विंग्स को फ्लटर करता है, फड़फड़ाता है, पंखों को फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से पत्तों पर डिपॉजिट स्नो पोएट के ऊपर गिरता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम वेयर डज द स्नो फॉल ऑन द पोएट्स बॉडी? फ्रॉम हेमलॉक ट्री, एंड दिस इज अ पॉइजनस ट्री। दिस इज नॉट अ गुड साइन। Has given my heart a change up. What actually has changed the mood of the poet? The poet's mood was changed because of the falling of snow from hemlock tree by the means of the crow. Crow के माध्यम से hemlock tree से गिरा हुआ स्नो जो पोएट के ऊपर गिरता है, उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। Poet का मूड चेंज होता है। And saved some part of a day I had rued of being ruined, destroy होने से बच जाता है। इसका मतलब the mood of the poet was upset। भाई अपसेट होगा तभी तो दिन खराब होगा। तो पोएट का मूड अपसेट था, इसलिए दिन खराब होगा। तो इससे he has been giving importance to the ominous thing, that these ominous things became much important in my life, which have saved my life from being ruined, or have saved the part of the day from being ruined। बर्बाद होने से दिन का कुछ समय हमारे लिए वो बचा देता है। तो इस तरह से आपका पोएम तो खत्म हो गया, लेकिन चलते हैं इसके हम राइम स्कीम। ठीक है, राइम स्कीम क्या होती है? वो पोएम की तुकबंदी। राइम स्कीम जो है पोएम की तुकबंदी होती है। तो द पोएम इज ऑफ 8 लाइन्स। ये पोएम 8 लाइन की है। तो इसमें फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रू। तो पहली लाइन के लास्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं?
ए पॉइंट दिया जाता है? सुप डाउन ऑन मी, यानी कि सेकंड लाइन को हम बी देंगे, ये भी हो गया। और फिर द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो और क्रो ends with the similar phonetic sound. Therefore, also the third line is known as A. And me and a tree, these two, A, B, this is the first stanza. Her, part, mood, and review. So, CD. You can say CD. Why? Because this is the next stanza. So, CD. If the first line rhymes with the fifth line, then A should come back. अगर क्रो और स्नो से ही मिलता फोनेटिक साउंड ये पांचवी लाइन में होता, फिफ्थ लाइन में होता, तो फिर यहाँ ए बात कही जाती, कहा जाता ए। ठीक है, तो अब जितने भी स्टेंजा वो यूज कर रहा था उसमें लाइन इसकी डिफरेंट है, ए बी सी डी सी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। सुना है तो फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार के रूप में होता है, कहा जाता है, उसका हिंदी में नाम दिया जाता है अलंकार। नाउ फिगर ऑफ स्पीचेस आर यूज्ड टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में इनजैबमेंट। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है इनजैबमेंट, यानी कि आप देखिएगा कि द होल स्टेंजा हैज बीन, द होल पोएम हैज बीन given only one symbol. Okay, that is the symbol of full stop, and not even a single line has been punctuated by other symbols like comma or full stop. तो जब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कैपिटल लेटर में लिखी जाती है और किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन सिंबल नहीं होता है, तो ऐसे इनजैबमेंट फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, भूलने की बात नहीं है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो हम यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पा रहे हैं, ALI एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, ये फिगर ऑफ स्पीच दो तरह का होता है। इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच आता है, वो असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, ASSONENC। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, द वर्ड्स प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट फोर्स। कॉन्सोनेंट फोर्स, जब वर्ड्स जो होता है, कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, एक ही लाइन में लगभग सेम कॉन्सोनेंट, एक से मिलता दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट होता है, तो वह एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसको हम रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। एलिट्रेशन को रिपीटिशन भी कहते हैं। रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स या फिर कॉन्सोनेंट।
ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं पहली लाइन में देखिए, द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ कोई नहीं है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, इसमें भी कुछ नहीं है। हैज गिवन माई हर्ट, हैज एच वर्ड आ रहा है, हर्ट एच वर्ड आ रहा है, तो हैज और हर्ट दोनों में फोनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ रिपीटेशन कहते हैं। सेव द सम, यहाँ भी यस से बन रहा है। दे हैड रिव्यूड, इसको हम कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स NENCE, कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं इसको। इसको तो लास्ट लाइन में है दे हैड रिव्यूड, ठीक है, डी सब में है, तो हम इसको कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे इस पोयम का थीम क्या रहा, दैट द मूड ऑफ द पोयम इज क्वाइटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ इट, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट द ओविनस थिंग्स which are symbolized here in the poem now have power or ability to change the mood of the human being. The mood of the human being can also be changed with the ominous things in the world. जो अशुभ संकेत सूचक चीजें होती हैं संसार में, उसके भी माध्यम से लोगों के दिन बदलते हैं, लोगों के मूड चेंज होते हैं। समरी हम जान गए कि पोएट कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, उसका मूड चेंज होता है, किस कारण उसका मूड चेंज होता है। राइम स्कीम के बारे में हम समझ गए कि इस पोएम का राइम स्कीम क्या है। इसके साथ साथ हम फिगर ऑफ स्पीच, जैसे इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लिटरेरी डिवाइस, दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी डिवाइस। तो तुम्हारे 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक जो क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेरी डिवाइस के नाम से भी आ सकते हैं, पोएटिक डिवाइस के नाम से भी आ सकते हैं, या फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी आ सकते हैं। लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोयम में इतना ही था। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुछ बातें क्वेश्चन पर हो जाएंगी। हमारा जैसे कि पहले तो इसे थोड़ा सा वॉमिट कर दें, वॉमिटिंग जरूरी है इसकी, तो वीडियो मत करो। नाउ माय डियर, आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर द एक्टिविटी दैट इज थिंकिंग अबाउट द पोएम। थिंकिंग अबाउट द पोएम। Now here, the question is, what is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? The dust of snow. Just better to follow the information. The dust of snow represents cheerless. Cheerless means unhappiness. Someone is getting entertained. Deadly and depressing. Aspect of nature. Aspect of
aspect of nature. It was winter season. It was winter season when a crow somehow flutters flutters easily, somehow flutters through the leaves of the hemlock tree and lets the powdery snow fall on the poet. This little incident changed the poet's mood from bad to good. Now, it is the dust of snow represents REVERESTS cheerless, deadly and depressing aspect of nature. Cheerless, deadly and depressing aspect of nature. क्या प्रेजेंट करता है? डस्ट ऑफ स्नो. ये रिप्रेजेंट करता है. इट वॉज winter season. It was winter season when a crow somehow flutters through the leaves. Of the hemlock tree and lets the powdery snow fall on the poet. This little incident, कौन सा incident? Fall of the snow. Incident now change the mood of the poet. Second, second one. Here, how does frost present nature in this poem? The following questions may help you to think far and answer. Now here, how does frost present nature in this poem? What are the birds that are usually named in poems? Do you think
a crow is often mentioned in poem. What image comes to your mind when you think of a crow? The second, again, what is a hemlock tree? Why does not the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? These are the symbol of goodness. Therefore, the poet has not mentioned. What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Now, these are the things by which you try to understand. Now, here the poet creates an image here it is. Creates an image oblique symbol the crow, the tree, and the snow. That represent the evil and deadly aspect of nature. एक बात ध्यान देने की होती है कि लगभग एक ही क्वेश्चन से मिलता जुलता सारे क्वेश्चंस का आंसर आने लगता है। तो ऐसे में बच्चों के अंदर एक कभी कभी कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या इसका भी आंसर यही है, जबकि वही चीज दोबारा वो पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि वही चीजें हमको करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the birds that are usually named in poems? What are the birds that are usually named in poem? तो भाई यहाँ ध्यान देने की चीज है कि there are two types of birds used in the poems generally. There are two types of birds generally used in the poem. तो ये गुड साइन होता है और बैड साइन होता है। अब हम गुड साइन में नाइटिंगेल रखते हैं, गुड साइन में नाइटिंगेल रखते हैं, और लार्क्स और रखते हैं कुकू। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, ठीक है। और बैड साइन में हम रखते हैं काइट, ईगल, क्रो और रेवन। क्रो तक ही जानिए, बहुत लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। रेवन, क्रो जब बोलेंगे तो रेवन अपने आप हो जाएगा, काला कौवा, ठीक है, काला कौवा। तो ये जनरली पोएम्स में नाइटिंगेल, लार्क्स और कुकुज को रखा जाता है कि ये गुड साइन है, और बैड साइन के लिए काइट, ईगल और क्रो का यूज किया जाता है। उसी तरह से पोएम में ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा कि फिर आगे उसी में व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो? बैड इमेज। क्रो के बारे में हम क्या सोचते हैं? Bad image
comes after the name of crow. Or when you think about इसके बाद है crow is often mentioned in the poem figure. Again, what is a hemlock tree? तो hemlock है poisonous tree है. Hemlock is a poisonous plant. Poisonous plant. Now, next है more beautiful tree, maple oak. Why? Because the poet wants to create the image of bad omens, bad trees. Therefore, he has used a hemlock tree. Now, a third question. What do the crow and hemlock represent? But वही बात बार बार पूछ रहा है. ठीक है. Joy or sorrow? तो sorrow. And what does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stands for? तो अब आप stands पर यही है. The poet has not written about a beautiful tree. Now the poet wants to create such kind of image. Okay, my dears. Today I have, as good as possible, completed the poem. Next day, in our next video, we will read the next poem. Thank you very much. A very